Good afternoon, everyone. Today it is Sunday, and on Sunday we have a revision class. That is why we are going to have a revision. Well, good afternoon. I'm going to ask everyone questions, and you will try to answer. If you find difficulties, then I will answer your questions. Well, so very first, I would like to talk Miss Savitri Pandey. Yes, sir. Good. As you know, today there is a revision class. That is why I'm going to ask you some questions in English, and you will try to answer. If you find difficulties, not to worry, I'll help you. Yes, sir. Well, would you please tell me on your schedule about Sunday, that on Sunday, how do you spend your time? I go to. Yes, sir. I spend Sunday is I happy. Um, Sunday is spend time in other work in my home, and and uh, and I um I follow in my morning times my diet in exercise. Um, their their other work, um, and who mm, all finished their work in 1 week till till Sunday, and um, and all days in uh, busy busy, and um, and I think Sunday is um, come Sunday in uh, uh, go go in um, other city other cities in, but not things not thing home, my house in their work all time is busy. Great, absolutely great. So, uh, there's topic in English, and that topic is take for granted. Take for granted. Take for granted. Take for Oh, granted. Take for granted means if someone told you that I take you for granted. I take this mobile for granted. I take my business for granted. I take my job for granted. Generally, he means to say that I do not value this thing. I do not value my job. I take you for granted means I don't give you value. Okay. okay, sir. So I have a question, and that Yes, sir. is, I have a question, and that is, many people take homework. Homework means the work generally our sister and mother do at their home, means cooking, sweeping, and caring their children. These are called homework. So many people take homework for granted, and they work outside on their shop, and they do job anywhere. They do not take their job for granted. They feel that I work harder and harder. On the other hand, they feel my sisters, my wives, my mother's work, that is also called homework,
is nothing. So I would like to ask a question. Uh, is homework uh, is a not a serious work? This is very serious work to be taken. Those people, uh, those people have a wrong mindset about homework. What do you think about that? सर दिस हिंदी हिंदी ट्रांसलेट क्या होगा सर इसका? Okay, okay, but I'm not going to speak Hindi, but I'm going to speak it again in English, and I'll speak slowly so that you may understand well. I'm sorry, I'm not going to speak Hindi, but I will speak slowly, okay, so that you may understand well. A man, a man means husband, work outside, maybe on shop, maybe in a company, maybe somewhere. Okay, husband works outside. That may be his shop. That may be he may be employed in a company, in a school or colleges, anywhere. And women works inside work. A wife work uh, like sweeping and cooking and caring her children and mothers, fathers. Okay, so women's work to care his home, and man works out. Okay, now the question is that many men Yes. thinks that I work harder and harder. My duty is a duty. My Yes. duty is a real duty, and my sister, my mother, my wife, whatever she is, they don't do a work. They take homework means women's work for granted. They do not value women's work. They value their own work. A husband, a man thinks that I do uh, hard work. And when he thinks about his mother's work, his sister's work, his wife's work, then he thinks, oh, that's not hard work. That's he doesn't take it seriously, but he take it for granted. So my question is this: that why many men think that women's work means homework is not so uh, important as is not so essential. And really, homework is it very easy to do? This is very tough work. So far, if you ask me my opinion, then I would like to say a man works 8 hours outside. But if I talk about women's duty, so a lady work 24 hours in her home. When she is wake up all the time, she works in a kitchen and sweeping uh, her homes, and she cares children. Sometimes men ask water, tea. She goes in kitchen and she bring all things. So I think women's duty is long and hard in the comparison to men. Men works only 8 hours and or 6 hours. Although Yes. when men believe I work harder and harder, and they do not value their sister or mother or wife's work. This is my question. I just want to know what do you think about that. Yes, sir. Women's work is very hard, sir. Not men's work. Men's work is hard. Their responsibility in all women's is not job. They all about things. Uh, all is well, but men's is not job is very difficulty. Man is job is need compulsory. Man's who man's uh, they are on um, need uh, जिम्मेदारी need Responsibility. and all family, sisters, mothers, fathers, and all brothers and their children, wife. But woman's responsibility in all family. But now
जो टाइम so time sometime need in job so women's is work hard I mm, I go to early in the morning and all finished in work for home and go to job and come back in home and see they all family and our children they are do homework evening time and uh, you not in see not in care not in take care mm, uh, and you all responsibility in family but women's hard work uh, till see uh, do job but uh, but uh, but then see all time home in our our house is see good and take care our child our husband but husband work is very hard both both no That's great. Absolutely fantastic. You try to explain all the things. Really fantastic. yes Well, now I'm going to ask a question to Mr. Irfan. Can you hear me? No. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, great. But told slowly, not No full problem. value. No problem. We will manage. Mm. Well, so Mr. Irfan, you work Yes. in you work in Gulf and we work in India. Many people do job in India and many people work in uh, Gulf or out of India. I just want to know that what job is luxurious and comfortable, work in India or work in Gulf? Mm. First of all, some people is working in India, and some people is working in Gulf. Have different because India is our country. Nearest our location, our urban location, our village location is better. Gulf is another country. Gulf is another country. Comparison to India and Gulf, India is better, but sometimes have a more problem. Some people is not selected India for India a job, a government job. Our think in starting childhood think just I uh, completed matriculation, intermediate, and graduation, and I will try to army, police, and Indian government job. But it is not possible that time. Like lack of my qualification, lack of my knowledge, and lack of my uh, lack of qualification. That's all. So, but Gulf is better. This point of view, Gulf is better. If any people, some technical helper, technician, everything is completed our course and go to the Gulf region, Saudi Arabia, Qatar, everything.
and their job because have some different like this real and Indian rupees. So that if I think back our family, our brother, our mother and father and wife, depend my family with me. So that is comfortable because every person money, need to money. Every person need to money. But our thing, we are combined, stay, yeah, combined family, and we are job our location that no, not earn more money. So uncomfortable. If you are in working India, you are working Gulf, it is not matter. Depend our salary, depend our money. And also Gulf is better. Their rules is better. Here ruler is better, and discipline is better. Suppose that, for example, I am wake up in 3:30 after prayer namaz and go to the everyday in duty. 7 o'clock my duty starts. It is possible our country not possible because we are lazy, our country. So if any people find out and take government job and best company job, any best business like this, any best business, so that India is better, our country is better. Our country is our countries. But if no have any job in India, no have any job in, no have any business in India, so obviously better Gulf country, comfortable, obviously. But we are try to first take education, take business education. We should we try to first we should we try to first India job because our nearest our village, nearest our city, everything is. But we are not success, so that our mindset is comfortable in Gulf. Absolutely, absolutely fantastic answer. Wonderful. And the rate of your speech is amazing. You speak with comfort. Everybody may understand well. So fantastic. You have worked harder and harder on your English speaking, and now you're able to speak English well. God bless you. Next, Mr. Abhishek. 1 minute. Mr. Uh, Fayaz. Yes, sir. How are you? I am fine. It is wrong to say I am fine. When you need to speak I am, then you need to say I'm, not I am. I'm I fine. am. I'm fine. I am fine. Yes, not I am. Do not speak separately. I am. No, I'm fine. I I am. Dear student, may I ask you a question? Yes. When you feel sad, when you feel sadness, what happened? That's why you get nervous. No nervous. Sorry, I didn't get you. I asked you that what happened, that's why you feel nervousness, you become sad.
I am happy. At the time you are happy, that's great. God bless you. But I'm asking about a situation that what happens when you feel sadness, not happiness. I'm not talking about current situation. I'm talking about a situation. Okay, leave this matter. I'm going to ask another question. What is your favorite dish? What is Favorite that? is biryani. Biryani? Yeah. Okay. So after biryani, what is your favorite dish? Biryani is your first choice. Okay. After biryani, Huh? after biryani. Okay, I got it. Biryani is your first choice. After biryani, Uh, it is hard to find out mm, because you never think about others except biryani. Am I right? yeah, right. Okay, okay, okay. What's kind of job do you do in Gulf? What you are? I mean to say, what you are? Are you a I work? live I live in India. You live in India? Yeah. Oh, amazing. So, do you do job or do you study? I am teaching. You are teacher. Fantastic. Yeah. Urdu Fantastic. teacher. Yeah, teachers are nation builder. Teachers are nation builder. Okay. What do you teach, Mr. Fayyaz Raza? What subject do you teach? Arabic. I am teach Arabic, Urdu, Okay. Farsi. Farsi. Yeah. Amazing. Absolutely amazing. Okay, so now I want to ask a question, and this question is very, very important for me to know. And that is, suppose you got a naughty student, he's not going to do homework, he doesn't come on time, he always late. Okay, he's not a good student. How do you control? Because I have some students, they do not do homework on time, and they do not follow me what I say, and they generally come late. So I am not able to control over them. How do you control such students who are such type of? First of all, students. Uh, I I am understanding understanding. Um, You mean convince? Convince means समझाना. Understand means खुद को समझना. I think you want to say convince. convince Okay. and um, सर बोल नहीं पा रहा हूँ बोलने You नहीं आ you रहा you are trying. Great job. A teach. This does not suit a teacher who give up. हिम्मत हार जाना टीचर को शोभा नहीं देता. So you need to try. Just before a man was speaking, his name is Irfan. He had started from zero and now he is hero. So he is working harder and harder. He attended many lectures of mine. Suppose I teach four classes or three classes. So he attend all the class and he worked harder and harder. That is why today he is able to speak English well. And just 2 minutes before he was speaking. So the student never give up. Work harder and harder. If you study 1 hour and you're not able to speak English, then study 2 hours. If you study 2 hours, you're not able to speak English, study 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours. Surely you'll get success. Okay, I'm going to change my question.
and I hope this time you will say something. Inshallah. What mobile do you use? I just want to know the name of brand. What brand do you use? I am using Realme. Redmi, Realme. Realme. Okay, okay. So, dear student, I have never used Realme. That's why I have no experience about that. Would you please tell me what's your experience about Realme? What kind of mobile is that? About its battery, about its performance. Okay, tell me everything. What you got it? What you have experience? Realme is very good mobile, and is he is charging better, and uh, mobile he is good mobile. He is better company. He is better camera and good. Great, absolutely great. Okay, after some minutes, I will come back to you and I'll ask you another question. Okay, Uh, Mr. Minhaz, जी सर. how are you? I'm good, and you? Also fine, thank you. Do you work in India, in Gulf? No, I study in India. You study? Yes, sir, I study. Great. In what class do you study? I am pursuing BSc. Oh my goodness, that's great. Absolutely. Okay. The way you convince people is amazing. When you convince your classmates, anyone, you speak with logic. That's why most of us love to hear you. So you have a good quality that you are a good uh, speaker. You convince well. Everybody has different quality, but you have a quality when you teach someone, when you say someone. So we feel comfortable in understanding the concept. So God bless you. So I'm going to ask you a question, and I hope you're going to convince as well. Okay. I will try. Okay. Why do we study? There's a boy. Because There's a boy 3 years old, 5 years old, and his mama is saying go to school. Then he's saying, Mama, why do I go to school? What is the advantage of going to school? we study for our life, because study is very important for us and our family. We do not study, we cannot achieve anything. We cannot give anything our family, and this is the important of study. And we can go other country, and we can earn a lot of money. And in India, we can earn money, but not like that. That we should read and study hard. Great. But my question is not that. My question was, what is the advantage of learning? Okay, leave this matter. I'm going to ask this question on another way. That is, tell me the difference between two people. The first one is educated and the second one is uneducated. Tell me, how is their life different? If the person is educated, they have not worked too hard. If the one person is not educated, uh, he he work he does work too hard for his family, for him. But an educated person work anywhere and get any job, and
do something. And an not educated person, they cannot they cannot job anywhere, any company, and they cannot successful in his life because he work hard in his family. If the one person is educated, they always got a government job and he done for his family anything. If the not educated person not do same thing. Good. That's great. And what's your object? What do you want to become in your life? I want to become a gamer, but it is not happened yet. But I also try to get a government job and take care of my family and my Okay. brothers and sisters. Okay. You have told me that you want to become a gamer. What is the advantage of becoming a gamer? Becoming a gamer is a you have earned a lot of you earn name in the world and you earn respect from other country man, and also in your country people also like you when you see you at this position. You also feel good when you see like them like that. Okay. As you told me that you want to become a gamer, then I have a question, and this question is very essential for me to know. Actually, I want to know what laptop is better for gaming. I'm searching about. I'm not sure, but I'm not using laptop. I use only mobile. So you play game on mobile. I use mobile for game. I use iPhone for better experience and better gaming experience because iPhone has more processor than any phone, and they work good in the game. What iPhone? iPhone 15, 16, 14. I have iPhone 13 Pro Max, and I also play BGMI. Would you please tell me about its camera? Actually, I'm asking for the purpose of shooting videos. So what about its camera? iPhone camera is best than other phones. Their portrait mode is better than any phone. We can click the photo and find better than other phones. iPhone is best camera in phone, but not zoom also. Do not, but they have not extra zoom and other compared to phone. But camera phone is also good. Camera is also good in iPhone. That's great. Absolutely fantastic. Asma Khan. Asma Khan. Okay. Sajia Khatun. Sajia Khatun. Well, so Abhishek, Mr. Abhishek, Yes, sir. how are you, dear student? I am fine. Well, so may I ask you some questions? May I ask you questions? Yes, sir. The first question is that what do you want to become in your life? सर समझ में उतना नहीं आ रहा है इंग्लिश. Try to understand. I'm going to speak again. Try to understand. What do you want to become in your life? For example, some
some student want to become a doctor, some of them become engineers, some of them become businessmen, some of them becomes player, I mean cricketer, footballer. And if I talk about you, so what do you want to become in your life? My target is police officer. You want to become a police. Okay, okay. Why police? Why not a leader? Why not a teacher? Why not a businessman? Why a policeman? Policeman is, my opinion is policeman is a better job, and other job job other job. Okay. Is there someone in police at your home? Is there any member who is in police service? Hello? Excuse me? Mr. Abhishek, Yes, sir. I'm going to ask you another question. Do you drink water? Yes. Okay. Why do you drink water? What Yes. my opinion is, what water is alive. Yes, you are absolutely right. Many people say Jal hi Jeevan hai. So you are absolutely right. Jal hi Jeevan hai. Good. So tell me more information about water. Water is a important in our life, and 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 uh, Suppose I have no water. What would be situation? and the peoples are dead. Peoples. Good. You're trying. Dear Abhishek, I have a group of many good speakers. I have a WhatsApp group where a lot of students come in the evening at 8 o'clock, at 9 o'clock. Some of them come at 10 o'clock. And they have conversation. They try to speak. So if you join that WhatsApp group and if you talk every day, then you can improve your English. So you need to join such group where people are speaking English, and you are lucky that I have that group. So after this class, you contact me, and I will add you in group so that you may improve your English. Right? Yes, sir. Good. Asma Khan, I'm not going to reach you. Unmute yourself if you can listen me. And Sajia Khatun, can you hear me? Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? I am fine. Okay, I mentioned your name before. Where were you? Were you sleeping? Yes, sir. I called your name some minutes before and I asked 3 times, Sadia, Sadia, Sadia. But there were no reply. Where were you? Yes, sir. Okay. सो गए थे. Yeah, I can feel it. I understand. Today it is Sunday and Sunday means fun day. So you were enjoying how to sleep. Okay, no problem. So may I ask you a question? May I ask you a question, dear student? Yes, sir. May I ask you a question or may I ask you translation?
What is better for you? May I ask you translation or may I ask you a question? You have two options. Choose one. Translation or question. Translation of question. All right. I'm going to speak English sentences. You translate into Hindi. Okay. Yes, sir. I'll speak English sentences and you will speak Hindi sentences. May I speak? I teach English. Speak Hindi. You speak Hindi. I teach English. सर आप इंग्लिश में बोलेंगे हम हिंदी में बताएंगे. Exactly. Exactly. You will speak Hindi and I will speak English. ठीक है सर. The first question is, I teach English. मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ. I don't teach English. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ. Do I teach English? मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाती हूँ? Sorry, wrong. Do I teach English? मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ. Absolutely wrong. Try again. May I teach English? Sorry. Do I teach English? तो तुम इंग्लिश पढ़ा चुके हो? Amazing. What answer? This is a game. Are you playing Ludo? Saap wala. Sadia, Yes, sir. this is not a riddle. Try to understand the concept. Yes, sir. Do I teach English means in Hindi? Do I teach English means क्या मैं English पढ़ाता हूँ? क्या मैं पढ़ाता हूँ? Do I teach English? क्या मैं English पढ़ाता हूँ? क्या मैं Okay. इंग्लिश पढ़ाती हूँ? All right. Don't I teach English? तो एक बार और बोलिएगा. Don't I teach English? क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ? Absolutely fantastic. God bless you. Ria, this answer is absolutely amazing. Why do I teach English? क्यों मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ? Absolutely correct. Absolutely fantastic. Sorry. How do I teach English? How do you teach English? But I spoke I. How do I, not you? How do I teach English? सर इसका तो नहीं पता. No, try. How do I teach English? How do I teach English? Yes. तुम मुझे इंग्लिश मतलब तुम मुझे इंग्लिश पढ़ा सकते हो? Oh my goodness. First I said I and you are saying tum. So I means tum. Amazing. Okay, not to worry. I'm going to ask another question. First, you take a breath and be comfortable. Then you answer my question. पहले आप आराम कर लो थोड़ा सा, गहरी सांस ले लो, रिलैक्स होकर बोलना है. Not to worry. Well, Okay. I'm going to ask another question. I have a gun. I have a gun. Yes, sir. I have a gun. Okay, I'm going to change my question. I have a mobile. यह एक मोबाइल है. I have a mobile. यह एक मोबाइल है. So you should be awarded and rewarded as a Padma Shri Puraskar by Indian government because you are going to translate amazing and traffic outstanding. So I have never seen such a great translator. When I say I have a mobile and she's going to say different thing. Okay, so I'll request Indian government that you should be rewarded as a Padma Shri Puraskar. God bless you.
So who is next? Fayyaz Raja. जी Mr. Fayyaz Raja, may I ask you translation? ट्रांसलेटर Okay, but have you heard our sister Sajia were speaking absolutely rubbish. See, I was asking something and she was answering another thing. Okay, so she should be punished. Do you believe or not? Do you think that she should be punished? जी सर She should be punished means in Hindi, इनको तो सजा दिया जाना चाहिए. Do, are you agree? Do you agree with me? नो सर Why not? Because if you done wrong, then you should get punished. Otherwise, you will repeat that mistake again and again. When your student make mistake, do you punish or not? When your student do not learn their lesson, do you punish or not? Mr. Fayyaz Raja, यस सर I have asked you a question. When your student do not perform well, so do you punish them or not? Answer yes or no. नो No. यस Okay, you are very kind man. I'm going to ask you a question, but ओके सर I'm not going to ask you a question. I'm going to ask you translation. I'll speak English sentences and you'll speak Hindi sentences. ओके सर Okay, but one thing I would like to ask to you, एक चीज मैं आप लोग से हिंदी में पूछूंगा. साजिया मेरे कई सारे ट्रांसलेशन का सही जवाब नहीं दे पा रही थी. कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ और आप लोग सही से सुन नहीं पा रहे हैं? कि ये तो प्रॉब्लम आवाज नहीं आ है? रही है सर आ रही है ना बराबर? नहीं जी ओके, ठीक है. मुझे लगता है ऐसा तो नहीं कि आप लोग सुन ही नहीं पा रहे. एक नहीं सर, वर्ड, वो तबीयत थोड़ा खराब था, इस वजह से वो नहीं. हाँ मैं समझ सकता हूँ. आप बहुत इंटेलिजेंट है, तभी इसमें सारी प्रॉब्लम तबीयत की है. मिलेगा तबीयत खराब तबीयत मिलेगा तो मैं उसकी पिटाई जरूर करूंगा. हाँ, बहुत होशियार है आप. वेल, सो इसके पहले कि मैं आपसे कुछ पूछूं फैयाज रजा, मैं एक जी वर्ड आपको बता दूं. सोर थॉट. सोर थॉट मीन्स होता है गला का बैठना. ओके, जी वेल, ऐसे दिमाग में आ गया कि वर्ड तो सोचा आपको बता दें. गला बैठ जाना, शोर थॉट. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क, या शोर थॉट. ओके Okay, so I'm going to speak English sentences and you speak Hindi sentences. यस सर Why do you learn English? Speak Hindi. Why do you learn English? आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हो I learn English because, सर ट्रांसलेट करनी है ना इंग्लिश से हिंदी में yeah, dear student, you are translator. I learn English because, आई लर्न इंग्लिश because, क्योंकि पूरी बात बोलिए. आप ऐसे कहिए, मैं इंग्लिश सीखता हूँ क्योंकि, ऐसे बोला करिए. जी, मैं इंग्लिश सीखता हूँ क्योंकि I want to teach my student English. ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं Okay, that's great. बोलिए. Okay, that's great. हाँ, ये तो अच्छी बात है. जी ये ठीक है ये अच्छी बात है अच्छी बात है. I appreciate your thought. मैं मैं Appreciate, सोच appreciate means तारीफ करना, प्रशंसा करना, सराहना करना. I appreciate your thought. मैं तारीफ करता हूँ
किसकी तारीफ करते हैं आप? आई अप्रिशिएट योर थॉट. आपकी सोच की। गुड जॉब. गुड जॉब. Okay. So, do you believe that a day will come in your life when you will speak English well? जैसा कि आपकी जिंदगी में, क्या बोले सर? So, do you believe? Do you believe means कि आपको आप लगता है? Do आप you believe? आप क्या महसूस करते हैं? Do you believe that a day will come in your life when you will speak English well? अपनी जिंदगी में इंग्लिश क्या महसूस करते हैं? Okay, I'm going to help you. I'm going to help you. Do you believe कि आपको लगता है a day will come in your life, आपकी जिंदगी में एक दिन आएगा जब आप एक अच्छे स्पीकर बनेंगे? Okay. Why not? I think so. कैसे सर? Why not? I think so. नहीं, मैं सोचता हूँ। Why not? क्यों नहीं? I think so. मैं ऐसा लगता है. मुझे ऐसा लगता है। Okay. If I ask you about my class, क्या आप मुझसे पूछे? if I ask you means अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं about this class, इस क्लास के बारे में, क्लास के बारे में, what you are taking, तो जो आप ले रहे तो आप क्या जो आप ले रहे हैं, जो आप what ले क्या रहे आपको हैं. हासिल हो रहा है? हाँ. So what would you say? तो क्या कहेंगे? Okay. So do you feel positive or negative? आप मनफी सोचेंगे या मस्बत? It was very hard for me to understand. Will you please speak again? आपकी सोच मनफी है या मुस्बत, नेगेटिव है या Positive. पॉजिटिव? Yeah. Well, so yeah, so I think that's positive. मैं सोचता हूँ कि आपकी सोच अच्छी होगी, मुस्बत होगी। Good. Will you please share some experience about this class? आप अ, अ, आप क्लास से कैसा महसूस करते हैं, आप शेयर करेंगे? Of course, but not today. लेकिन लेकिन आज, But not today. टुडे, कल, Not today means आज नहीं. आज नहीं, But आज when? नहीं, But when? लेकिन कब? Maybe tomorrow. अ, लेकिन आज, टुमारो, कल। But it may be tomorrow. इट मे बी, लेकिन कल हो शायद सकता. के शायद कल. कल, शायद शायद. कल। That's not a big deal. That's not a big deal means ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। Good. And this is not translation. Now I'm going to ask your views, your opinion. Tell me about this class. What you are taking. जो क्लास आप ले रहे हैं महीनों से, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? इंग्लिश में बोलने से। आप संस्कृत बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं और चाइनीज बोल सकते हैं. चिंग चांग चुंग पिंग पोंग, 3 लैंग्वेज आपके पास है. कौन आपको आसान लगता है? संस्कृत, चाइनीज या इंग्लिश? जो भी आसान लगे उसमें से बोल सकते हैं. इंग्लिश। तो चुन लीजिए, जो आपको आसान लगे उनमें से चुन के बोलिए. वर्ड मीनिंग सर जहन में नहीं आ पाता है, समझ नहीं पाते कौन सा टेंस कहाँ पे यूज करके बोलना है। वो सब आ जाता है. आप जब बोलेंगे ना तो पहले गलत बोलेंगे.
एक लड़का है, उसने पहले मेरे पास आने से पहले 1.5 महीना मेरे यूट्यूब लेक्चर को खूब देखा। उसके बाद आया और उसको लगा कि मैं पहले पूरा सारा कॉन्सेप्ट तैयार कर लूंगा, पूरा देख लूंगा, समझ जाऊंगा और तब मैं जाऊंगा तो सही से बोल दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप प्रैक्टिस के लिए आएंगे तो पहले गलत से ही शुरुआत करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं भी आपने यही सोचता हूँ सर कि सब चीज याद कर लेंगे तब बोलूंगा। वैसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं एक बात बताऊं, अगर आपकी उम्र 20 साल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप 20 साल से अपने जी बहन को या अपनी मम्मी को रोटी बेलते हुए देख रहे होंगे। अगर आपकी उम्र 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल भी होगा, तो आप अपनी मम्मी को, बीवी को, चाहे पड़ोसियों को रोटी बेलते हुए देखे होंगे। आपने कभी नहीं ट्राई किया तो आप कभी भी नहीं रोल कर पाएंगे गोल। और वही आपकी अगर बेटी होगी 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, वो आपके आंखों के सामने रोल कर लेगी। कई ऐसे बहनों को देखा हूँ जो मुंह को, जैसे मैं अगर मुझसे बात कर रही हैं तो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा के भी रोटी अगर रोल करती है तो सीधा गोल ही होता है। हम अपने पूरा टेंशन के साथ रोटी को रोल करें तो भी गोल नहीं होगा। देखो भाई, ये ज्यादा पढ़ने से और ज्यादा इससे नहीं आता है। अब बोलेंगे तो गलती होगी, फिर कम गलती होगी, फिर कम गलती होगी, फिर कम गलती होगी, एक दिन नहीं होगी। ऐसे होता है। जी। अगर बस सर ग्रुप में जुड़े हैं लेकिन उसमें समझ में नहीं आता तो इसी वजह से नहीं बात करते। नहीं आता तो सुलान को छोड़ दीजिए। कोई आपके इस सर पे बंदूक थोड़ी लगाए कि नहीं नहीं वही बोलना है, उसको छोड़ के अगला बोलिए। हम्म, आप जहाँ पे रहते होंगे, एक चीज नोटिस करिएगा। आप जहाँ भी रहते हो एक चीज नोटिस करिएगा, वहाँ पे जितने भी स्कूल्स कॉलेज होंगे, हर एक स्कूल में 3 इंग्लिश के टीचर होंगे। कम से कम 3 रहते हैं, ज्यादा 4 भी रहते जी हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे ना, 10 स्कूल को आप सर्वे करेंगे तो 30 टीचर मिलेंगे। मुमकिन है कि उसमें से 25 टीचर इंग्लिश नहीं बोलते हैं, लेकिन नॉलेज उनके पास बहुत होती है। वो खुद इंटरमीडिएट तक इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर सब पढ़ाते हैं, बहुत नॉलेज होती है, बोलते नहीं है। क्योंकि अगर बस पढ़ने से जी। इंग्लिश आती तो कोई मसला ही नहीं था। दिस इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। ये तो प्रैक्टिस की देन है। आप ये मत सोचिए कि हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आप जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बोलते जाइए बस। जो लाइन नहीं है छोड़ दीजिए, अगला बोलिए। ओके सर, इंशाल्लाह से आज ट्राई। हाँ, आज से ट्राई करिएगा। तो टाइम खत्म हो गया है। कोई एक और है जो कुछ कहना चाहेगा तो आ जाइए सामने। आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो आ जाइए। और दूसरी बात यह है कि आप लोग प्रैक्टिस क्लास चाहते हैं, मतलब मैं इस जूम को कंटिन्यू छोड़ दूं? जी सर कर देंगे। ठीक है। तो मैं अब अपने को म्यूट कर ले रहा हूँ और आप लोग आधा घंटा या 1 घंटा जितना देर प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं। वेल, सो स्टार्ट। आज की जो हमारी टीम के कप्तान है वो है मिस्टर मिनहास। धन्यवाद। जी। Hello everyone, how are you? आई एम गुड एंड यू। I am also good. तो हम पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ते, पास्ट पढ़े थे ना, पास्ट इंडेफिनिट। कल मैं नहीं आ पाया था, थोड़ा मजबूरी थी। आया था हाँ लेकिन हेलो, बोल नहीं पाया। जी। आप इरफान भाई की आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अच्छा बोलिए। विनायक भाई मुझसे कल के थोड़ा पूछ लीजिए। ठीक है कल ठीक है, जब अभी अभी पूछूंगा आपसे। इरफान भाई क्या बोल रहे, थोड़ा उनको सुनने दो। मैं रहता हूँ मरियादपुर, जानते हैं आप? यूपी में रहता हूँ, यूपी में। मरियादपुर। आप कहाँ से आप? हाँ मरियादपुर। हाँ मरियादपुर में हूँ, शेखपुर से। शेखपुर जानते हैं? शेखपुर जी से लदवाई हो गया बगल में, फिर रोपनपुर हो गया। हेलो। जी विनायक भाई इरफान भाई चलो। कह रहे कि कल जो आप प्रैक्टिस करवाए थे वो मुझे थोड़ा करवा दें आज। हाँ तो कल हम लोग पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट, जो जी। कोई काम पहले हो गया था, पास्ट में गुजरे हुआ हुए था। वक्त में, बीते हुए वक्त में हाँ जो काम हुआ उसको पास्ट हाँ, करना। जैसे मतलब मैं गया था, मैंने जी। खाया था। और इसमें हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म। कैन फॉर्म। हाँ, यस। जब कोई ओके। काम मतलब हो गया था।
तो पूछूं जी आपसे? जी पूछे। हम्म, मैं गया था। आई वांट, आई वेंट। वेंट, गो वेंट गॉन। मैंने खाया था। आई एट, अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, पता है। मैं खाया था बोला हूं ना, अगर मैं बोलूं बस मैं खाया, तो कंफ्यूज हो जाएंगे मतलब किसमें खाया ये। मैं खाया, मैं गया। हाँ जरूरी नहीं कि मतलब था ही आएगा तभी मतलब रहेगा। अगर आप मतलब था लगा के बोल भी सकते हैं, तो बहुत लोग हैड लगाते हैं, आई हैड इटन, जो मतलब गलत है। हैड तब लगता है मतलब कोई काम, मतलब दूसरे काम इसी मतलब पास्ट में ही उस काम से पहले हुआ था, जी तब हैड लगता है। हाँ। हाँ, वह गिर गया। ज्यादा नहीं पूछूंगा, 5 मिनट he पूछूंगा। he 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 fall, नहीं, फेल। फॉल, फेल, फॉलन होता है। fell, हाँ। okay, मैंने महसूस किया। महसूस करने का होता है फील। I filled, और सेकंड फॉर्म क्या होगा? filled, सेकंड फेल्ट होगा, टी रहेगा लास्ट में। FELT। filled, हाँ, सेकंड फॉर्म बहुत मतलब filled, इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? जी हाँ, सेकंड फॉर्म याद करना पड़ेगा। हम ही नहीं, सबको याद जी करना पड़ेगा। मैं खुद ही नहीं याद करता हूँ उतना, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ, लेकिन तभी मैं याद करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन जी याद करना इंशाल्लाह मैं पड़ेगा। भी। हाँ। मैं जानता था। I I know नो होता है फर्स्ट फॉर्म, न्यू होता है सेकंड knew, I knew, फॉर्म। आई न्यू। और होता है, अगर मैं बोलूँ उसने मछली पकड़ा था। उसने मछली पकड़ा था। हाँ। पकड़ने की क्या है? ट्राई, ट्राइड, नहीं, मछली पकड़ना आ जाए ना, मछली पकड़ना बहुत लोग बोलेंगे जैसे ही कॉट द फिश, तो ये बोल सकते हो, जी लेकिन मतलब अगर तुम छोटा में बोलोगे, बस फिस्ट बोल दोगे ना, फिस्ट हो जाएगा, ही फिस्ट। I fi- he fished, हाँ, फिश के फिश से लिखोगे, उसके आगे बस ईडी लगा दोगे, हो गया ही फिस्ट। उसने मछली पकड़ा था, ही फिस्ट। और थोड़ा मतलब नेगेटिव पूछ रहा हूँ, थोड़ा और भी बताना है ना और लोग को। नेगेटिव में क्या रहेगा? सब्जेक्ट did रहेगा, डिड not नॉट। लगाना, हाँ, डिड नॉट रहेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। फर्स्ट फॉर्म रहेगा। हाँ। वह नहीं बैठा। He did not sit, वह नहीं थूका। थूकने का था, he स्पीड हो रहा did है। not, he did not स्पीड, SPIT, स्पीड मतलब थूकना। spit, spit, हम्म। वे लोग नहीं सोए। he did not sleep, they did not वे sleep, हाँ, सही है। they did not sleep, और थोड़ा इंटरोगेटिव में क्या आएगा? इंटरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, और बाकी मतलब सब्जेक्ट रहेगा, और आपका फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और ऑब्जेक्ट okay, रहेगा तो। हाँ। क्या वे लोग पढ़ाए थे? डिड पहले आएगा। भैया एक did एक सवाल did पूछना था। did he, हाँ, पूछो। अभी जो मतलब आपने बताया है पास्ट मतलब बीते समय में मतलब बीते समय को कहते हैं, और जो अभी हम्म। बताया है नेगेटिव, इससे मतलब इसको कहाँ करते हैं, मतलब इसको क्या कहते हैं? इसमें बता, इसे नहीं मतलब बोलूँ मैं नहीं खाया, मैं नहीं खाया था, नहीं आ गया ना, नहीं, तो डिड नॉट हम्म। आएगा बीच में। हाँ, मैं नहीं खाया था, वह नहीं खाया था, वह नहीं सोया था, नहीं आएगा, नहीं ना, तो समझ लो डिड नॉट लगेगा। इसमें और डिड वह नॉट, और इंटरगेटिव में? इंटरगेटिव में मतलब तुम्हारा डिड पहले आएगा, जो डिड है, क्या उसने खाया था, तो डिड आएगा, तो डिड पहले आ जाएगा, डिड ही ईट। वो आपका फर्स्ट फॉर्म यूज होगा इसमें। मतलब अगर कि आप, ऐसा कोई भी, अगर ऐसा कोई भी वो सेंटेंस आएगा तो ही डिड नॉट लगेगा। अगर उसमें नहीं रहेगा ना, जैसे मतलब मैं बोलूँ मैं नहीं गया था, तो नहीं हम्म। आएगा उसमें ना, मैं नहीं गया था, मतलब पहले की बात हो रही, मतलब पहले मैं नहीं गया था, उसमें होगा ही हम्म। डिड नॉट गो। मतलब मैं नहीं गया था, आई और डिडंट गो, आई डिडंट गो हो जाएगा। और और उसमें पास्ट में वो मतलब वो नहीं अगर मतलब खाया था। अगर कोई कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होना, क्या से, क्या मैं खाया था, तो पहले हम्म। डिड आएगा, डिड। क्या से स्टार्ट हो, क्या मैं खाया था, डिड आई ईट। समझ तो रही हो? ये नेगेटिव में चला ये गया। क्या जो है ना, क्या ये इंटरोगेटिव हो गया, और जिसमें नहीं आएगा ना, जैसे मैं हम्म। नहीं खाया था, तो ये नेगेटिव हो गया। हम्म। समझ रही हो? अगर जो अब जिसमें क्या पहले आ गया ना, क्या, क्या मैं खाया, तो समझ लो ये हो गया तुम्हारा इंटरोगेटिव। और जिसमें अगर मैं नहीं खाया था, मैं नहीं, मैं के बाद नहीं आया ना, तो समझ लो वो हो गया तुम्हारा नेगेटिव। समझ रही हो? ठीक और है। उसमें यूज होता है फर्स्ट फॉर्म, दोनों में फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव में भी और नेगेटिव में, दोनों में फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अगर अफर्मेटिव रहेगा, बस मतलब बोलूँ मैं गया था,
पहले मैं गया था, तो इसमें होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। मैं गया था, आई वेंट। समझ आया? तो इसका इसका सब्जेक्ट में गया था होगा ना, में मैं होगा गया ना। था, हाँ देखो मैं गया था, बस इसमें दो चीज है ये, एक सब्जेक्ट है और मैं, और गया था वर्ब हो गया। जाने का होता है गो, और सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। मैं गया था। हम्म, हाँ, मैं गया था। समझ में आया? मतलब पहले मैं गया था कहीं, पहले की बात हो रही है, पास्ट की। ठीक है। हम्म, तो याद भी आई। जी जी बोले। हम्म, क्या वो वे लोग क्या जीते पूछ, थे? क्या बोलो। डिड क्या ही, वे लोग, क्या वह जीता था, यह बोल दो, क्या वह जीता था? डिड ही जीतने का, जीने की था, लाइव, विन, विन विन जीतना। विन, जीते कोई मैच नहीं अच्छा जीते। जीत, हाँ, जी जीतना। जी। डिड आई विन, डिड ही विन। डिड ही, और दूसरा मैं कल पढ़ाया था, पता है कि दूसरा मैं पढ़ाया था, कोई काम पास्ट में रोज होता था, जैसे मतलब कोई रोज काम, मतलब मैं रोज स्कूल जाया करता था, ऐसा मतलब कोई काम मतलब जी रोज हुआ करता था। ये तो मैं बोला, जैसे मैं बोला अभी क्या पढ़ा, मैं गया था मतलब पहले कभी एक दो बार गया हूँ, 3 बार। अगर मैं रोज जाया करता था, मतलब रोज डेली का मेरा काम था जाना पास्ट में, इसके लिए यूज होता है, जी। समझ लो तुम्हारा यूज टू हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू, आपका यस, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं जाया ओके। करता था। यूज, यूज, हाँ ऐसे, आई यूज टू गो, हाँ, गो, हाँ ये सही है। मैं खाया करता था। आई यूज टू इट, हाँ, मैं सच बोला करता था। आई यूज टू टेल अ लाई, सच का स्पीक दी ट्रूथ होता है, स्पीक दी ट्रूथ, सच स्पीक बोलना, द ट्रूथ, स्पीक दी ट्रूथ। ट्रूथ। वे लोग झूठ बोला करते थे। ही यूज टू, वे लोग बहुत से लोग हैं so ना। they used to हाँ throw, हाँ, वे लोग सच बोला करते थे या झूठ बोला करते थे। सच का स्पीक दी ट्रूथ और झूठ का टेल अलाई हो जाएगा। tell a lie। हाँ, समझ में आया है ना? मतलब कोई काम जी पास्ट में ही रोज कोई काम जी हुआ करता था। मेरा मतलब डेली जी की जी। आदत थी, समझ लो एक तरह से खाना खाने की, मतलब डेली पास्ट में आदत इसको थी। कंटिन्यूअस नहीं कहना है, नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है। नहीं कंटिन्यूअस कहेंगे हो जाएगा, इसको। जैसे मैं जा रहा था, ये हो गया कंटिन्यूअस। जी मैं जी। खा रहा था, ये सब कंटिन्यूअस हो गया। मैं पहले खा रहा था, ये तो कंटिन्यूअस हो गया। क्या बस। और आज हम लोग पढ़ेंगे, जिससे मतलब इसी का पढ़ेंगे, लेकिन जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग रहेगा, उसके लिए हम जी, लोग लगाते हैं वाज और वर, और वर्ब का सेकेंड सेकंड थर्ड फॉर्म, फॉर्म लगा, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, जैसे मतलब मैंने पीटा, किसने पीटा? मैंने पीटा, आई, मैंने पीटा था आपको। इसमें सब्जेक्ट है आई ना हैड कौन? बिटन, नहीं, मैंने पीटा था, मतलब नया इसमें ना, मतलब ये इसमें नॉर्मल है, है सब्जेक्ट अफर्मेटिव है, है। इस सब्जेक्ट है, जी मतलब किसने पीटा था? मैं ही पीटा था आपको, मैंने एक तरह पीटा से। था, हाँ, अब मुझे जी। पीटा गया था। इसमें इसमें क्या सब्जेक्ट का डिफरेंट? पता नहीं, हाँ, कौन पीटा था पता ही, लेकिन पीटा गया था मेरे को। इसमें जी। बोलेंगे हम लोग, इसमें यूज करेंगे वाज और वर, सब्जेक्ट प्लस वाज वाज और वर, वर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके। हाँ, मुझे पीटा गया था। मुझे पीटा गया था, आई हम्म, वॉज बिटन, हम्म। क्रिकेट खेला गया था। क्रिकेट वॉज बता। प्लेड, प्लेट। हाँ, प्लेड, प्लेट। हाँ, उसे गाली दिया गया था। उसे गाली का अब्यूज होता है, he was, अब्यूज। he was abused, हाँ, अब्यूज। उसे धोखा दिया गया था। धोखा क्या होता है? चीट। उसे he उसे, was cheated, हाँ, चीटेड, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, चीटेड। cheated, मेरा अपमान किया गया था, अपमान, इंसल्ट। बेइज्जती, हाँ भाई, बेइज्जती, इंसल्ट। मेरा I was insult, उन लोगों का अपमान किया गया था। अच्छा उन उन लोगों लोगों का। का
हाँ they were हाँ दे हाँ uh, insult इंसल्टेड insulted. इंसल्टेड। हाँ इंसल्ट होता है, लास्ट में ईडी लग जाएगा, इंसल्टेड। समझ में आया ना ये? इसमें सब्जेक्ट मिसिंग जी रहता है, उसमें मतलब सब्जेक्ट प्लस was वाज वर्ब not लगेगा। हाँ वर्ब का जी, थर्ड फॉर्म। और जिसमें काम वो पास्ट में ही हमेशा जी वहां जाते रहे हो तो यहाँ पे यूज टू हाँ, अगर इस्तेमाल करेंगे। कॉन्टिन्यूअस रहेगा, कॉन्टिन्यूअस ना, तो आईएनजी यूज करेंगे। जी मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जी ये कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल है मतलब। जी। और कोई आएगा? सादिया, सादिया से पूछो थोड़ा। हेलो, हाँ पूछिए भैया। समझ में आया है? तुमसे आया पास का तो पूछा, है, थोड़ा अफर्मेटिव तुमसे बहुत। पास का जो काम पहले हुआ था, मतलब पास्ट में वो हुआ था। जैसे मैं गया था, मैंने खाया था, मैं सोया था। इसमें क्या यूज़ करती हो? इसमें यूज़ होता है मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये अफर्मेटिव है, पास्ट में मतलब कोई काम किया था पहले में। इसे मतलब बोलूँ मैं गया था, बताओ। आई गो। नहीं, इसमें सेकंड फॉर्म होगा यूज, सेकंड फॉर्म। इसे आई गो। नहीं, आई गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होगा, फिर थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। मैं गया था, अच्छा। आई वेंट। आई वेंट। सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा तुमको, बिना सेकंड फॉर्म यूज किया नहीं होगा, याद करना पड़ेगा। मैं ठीक है। स्कूल गया था। मैं स्कूल गया था। आई गो। हम्म, आई वेंट टू स्कूल। हाँ परफेक्ट। मैंने देखा था। देखने का क्या होगा? देखने का सी होता है और सेकंड फॉर्म सॉ हो जाएगा। सा। आई सा। हाँ, मैंने आपको देखा था। मैंने आपको देखा था। आई आई सा यू। आई शॉ यू, बहुत बढ़िया। मैंने अंग्रेजी पढ़ाया था। आई टीच इंग्लिश। टीच होगा फर्स्ट फॉर्म और टॉट होगा सेकंड फॉर्म। आई टॉट टीच इंग्लिश। हमें बोलना ही नहीं आ रहा है। टच। TAUGHT, टाट, टाट बोलो, टॉट। टा टा टाट, टाट बोल दो, हो गया। टाट। आई टॉट इंग्लिश। हाँ, आई टॉट इंग्लिश। वह बेचा था। वह बेचने को होगा। बेचा था। हाँ, बेचने का सेल होता है और सेकंड फॉर्म सोल्ड हो जाएगा। तो आई सोल्ड। नहीं, वह का क्या होता है? ही होता है वह का। ही सोल्ड। हाँ, ही सोल्ड, उसने बेचा था। अब आ रहा हूँ नेगेटिव पे। अभी नहीं तुमको बताया था नहीं वाला, इसमें नहीं आता है। उसमें आई यूज होता है डिड नॉट। मैंने नहीं देखा था। आई डिड नॉट देखने। सी, सी फर्स्ट फॉर्म होता है यूज इसमें, फर्स्ट फॉर्म। इसमें फर्स्ट वर्ब। हाँ, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई आई डिड नॉट सी। सी, हाँ आई डिड नॉट सी। मैंने नहीं पढ़ाया था। आई डिड नॉट टीच। आई डिड नॉट टीच। मैंने सब्र नहीं किया था। सब्र का क्या होगा? पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। पेशेंस। हाँ आई डिड नॉट पेशेंस। हाँ, वह नहीं हंसा था। हंसने का होता है लॉफ। ही डिड नॉट लव। एकदम मस्त बता रही हो। तुमने पैसा नहीं दिया था। ही डिड। तुमने ही। तुमने तुमने का होता है यू। अच्छा। यू डिड नॉट गिव मनी। बहुत मस्त। अब आ रहा है इंटरोगेटिव पे। क्या मैंने देखा था? आई डिड, इंटरगेटिव है। इंटरोगेटिव, हाँ। पहले डिड तो आएगा, डिड। आई हैव। नहीं, पहले डिड। अच्छा। क्या डिड। बोलूँ मैं, क्या अगर मैं बोलूँ क्या मैं देखा था, पहले डिड बोलोगे, डिड। लास्ट में था आया ना, और शुरू में क्या आया, क्या बोला मैं, क्या मैं देखा था। क्या? तो डिड के बाद से जो मतलब डिड देखने का रहेगा, क्या हो जाएगा?
डिड रहेगा और सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। तो कैसे बोलेंगे, एक बता दीजिए। क्या मैं आपको देखा था, डिड आई सी यू। डिड आई सी, ओके। डिड पहले बोलोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर जो रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या मैं खाया था। क्या मैं खाया था, आई डिड। नहीं, पहले आई, डिड, डिड। सॉरी, डिड के बाद आई लगा सकते हैं। हाँ, डिड के बाद आई लगेगा, आई डिड रहेगा। आई इट। क्या हुआ, खाया था। डिड योर यू नहीं, वाह, इट। वाह, वाह का क्या होता है। वह डेट, नहीं, सॉरी सॉरी, डैड भी दिस होता है, लेकिन आदमी है तो फिर ही लगाओगे ना। डिड ही ईट, क्या हुआ, डिड डिड ही। ही, डिड ही इट। हाँ। क्या तुमने पैसा दिया था। क्या डिड यू, डिड हम्म यू गिव मनी। हम्म, क्या मैंने मछली पकड़ा था। मछली पकड़ने का होता है फिश। गिव, डिड आई फिश। हम्म सुन लगेगा, बहुत अच्छा बात है। क्या मैं गया था। डिड आई गो। बहुत अच्छा। क्या मैं चावल खाया था। डिड आई इट, सॉरी, डिड आई राइस। नहीं, ईट सही बोलो, डिड आई ईट राइस। अच्छा, डिड सही आई बोल के। इट राइस। हाँ, समझ में आया है ना इतना। हाँ, जैसे अगर ऐसे तो मैं बता दे रही हूँ, अगर कोई हाँ जैसे एग्जाम में आ गया, जैसे मतलब अभी हाँ, तो 9th में, एग्जाम में तो आ गई, अगर आ आए। गया तो फिर उसमें मतलब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत नहीं होगा, अगर मतलब थोड़ा दिमाग लगाओगी तो आ जाएगा। एग्जाम में मतलब क्या, एग्जाम में आएगा तो कोई कहानी बनाने के लिए ट्रांसलेट आता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, और क्या आता है। और आएगा तो उसमें समझ लो बस पास्ट की बात रहेगी, ज्यादातर उसमें डिड और वाज ही लगेगा। ये तो सेकंड फॉर्म लगता है उसमें। सर सर बताया जैसे था ना कि, उस दिन। हाँ जैसे कि आज सर ना, मतलब वो जो लड़कियों से वो ग्रुप बना है ना, मतलब रात हम्म में जो बात करती हैं लोग, तो हम्म उसमें भेजे नेगेटिव टर्म्स टॉपिक, जैसे डॉक्टर हम्म। पे है, पुअर लाइफ पे, तो इसको कैसे मतलब बोला जाएगा। कैसे मतलब, वापस बोलो। जैसे इस पे लिख के भेजे हैं नेगेटिव टर्म्स टॉपिक ना, हाँ, डॉक्टर, पुअर लाइफ, विलेज ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन, मोबाइल इज हार्मफुल, यूपी बोर्ड, प्राइवेट हॉस्पिटल, जॉब, अनमैरिड लाइफ, सोशल मीडिया इज हार्मफुल। और फिर एक भेजे हैं पॉजिटिव टर्म्स टॉपिक, इसमें भेजे हैं टीचर, रिच लाइफ, सिटी, ऑनलाइन एजुकेशन, मोबाइल इज यूजफुल, सीबीएसई बोर्ड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बिजनेस, मैरिड लाइफ, सोशल मीडिया इज यूजफुल। ये सब टॉपिक समझ रही हो, इसमें आएगा हाँ तो नेगेटिव, इसको, आएगा एक एक जैसे इसको ना अफर्मेटिव आएगा। रात में जो अपील होती है ना, वो जैसे अपने में वो करती हैं लोग, डिबेट करती हैं लोग, और डिबेट। हमको आता ही नहीं है। तो जाके चैट जीटीपी रहता है ना, चैट क्या है, चैट जीपीटी, उस पे जाके लिखोगे इसके बारे में तो आएगा पूरा। मतलब अगर नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव भेजे तो नेगेटिव में पूरा बनाना पड़ेगा, जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मतलब यही सब बनाना पड़ता है उसमें। इसे चैट आई वॉज, जीपीटी। चैट जीपीटी थोड़ा मतलब हेल्प करता है वो। अगर मतलब अगर मैं देखा होता तो बता देता, लेकिन बता रही हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन उतना समझ में नहीं आ रहा है हमको। ग्रुप में भेजेंगे तो सर बोलने और लगेंगे ना। वो कोई वो नहीं, लेकिन उसमें मतलब करना क्या, ट्रांसलेट करना है उसका, या मतलब टॉपिक बना के सर को भेजना है पूरा, मतलब उसके बारे में, नहीं जैसे नहीं, उसको जो शाम की गर्ल ग्रुप है ना, मतलब शाम हाँ में, तो शायद हाँ। इसके बारे में डिबेट करेंगी लोग, पता है, मतलब पता अच्छा नहीं क्या वही है। लोग करेंगी, मतलब अपने जिससे मतलब बारे में डिबेट मतलब, हाँ के, डिबेट टॉपिक है मतलब क्या ये। होता है, जिससे मतलब डॉक्टर अच्छा होता है या खराब होता है। हाँ, इसके बारे में कोई हम्म, अच्छे के बारे में बताएगा, मतलब कोई कहेगा हाँ कि मैरिड लाइफ इज बेटर, और कोई कहेगा कि हाँ अनमैरिड लाइफ इज बेटर, तो दोनों हाँ। में तो डिबेट इसके होता है। लिए ना, पता है क्या, इसके लिए तुमको बोलना पड़ेगा। तुमको जो आए मन में वो बोल दो, टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन बोलो।
वो सही होगा। मतलब अब हम ही लोग बोलते हैं सर के सामने थोड़ा ना पूरा एकदम परफेक्ट पूरा सब सही बोलते हैं। उसमें से हम लोग भी लगता है कि मेरे को सब लोग 60% 80% गलत ही बोलते हैं। यहाँ तक मैं खुद गलत बोलता हूँ। कोई परफेक्ट नहीं बोलता है। धीरे धीरे जब बोलोगे, जब होगा आदत डेली का ना, तब जाके थोड़ा बहुत सुधरेगा। मतलब फिर बाद में जब बोलने लगे खुद अपने में, तब हो जाएगा। और टेंस भी मतलब रहता है उसमें। क्या होता है मतलब बहुत लोग बोलते हैं डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वही मतलब डिबेट होता है वो सब, थोड़ा बहुत लिखने के लिए। और उसमें जो आएगा ना एग्जाम में, वो ऐसा नहीं आता। एग्जाम में तो बस तुमको ट्रांसलेट करना पड़ेगा उसका। जैसे देयर वाज अ लायन, वहाँ एक शेर था, तो ऐसे मतलब ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ही वाज द किंग ऑफ नहीं, जंगल। ऐसे भी आता है। हाँ। और ऐसे जैसे आप पूछे है ना, ऐसे भी आता है। ऐसे भी आता है। हाँ, हम तो 8 में थे तो ऐसे आता था। अब पता नहीं, अब तो दूसरे स्कूल में गया, पता नहीं ऐसे हाँ तो आएगा कि ऐसा नहीं। आता है तो जैसे आएगा, जैसे मतलब अगर आ गया, जैसे कि हिंदी में आएगा, मान के चलो मैं गया था, अगर ऐसा आ गया इस तरह से, तुम लिख देना आई वेंट, हुआ गया था, ही वेंट, तो ऐसा मैं खाया था और मैं खा रहा हूँ, ऐसे तो क्या आता है इसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, और क्या आएगा? और पास्ट वाला आएगा, बहुत आएगा, तो फ्यूचर आएगा। तो थोड़ा मतलब स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाने के लिए, हम्म। पढ़ने के लिए। हाँ। तो वही तो हम लोग बता रहे हैं, अगर सर जितना बताएं इसमें थोड़ा बहुत देखोगे ना, तो आ जाएगा। थोड़ा हेल्प कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा बहुत, कि आ जाए। कोई और प्रॉब्लम वाली एकदम। बात नहीं। वो नहीं कि मतलब मेरे को नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, बात खत्म, क्या करूँ, खूब सोचने की जरूरत नहीं है कोई। अरे वो नहीं आएगा, कोई और क्वेश्चन तो आएगा ना पेपर में। पेपर में क्या रहता है, 10 के में बस जाके कॉपी पूरा भरो, एकदम अच्छे से लिखो, बात ही खत्म हो जाएगा। 10 में हाँ। नहीं, 9th में। 9th में तो भाई, 9th में वैसे भी पास कर देंगे, कोई वो नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 9th में मैं तो पेपर ही नहीं दिया था अपना, मैं सच बता रहा हूँ। अरे मुझे बताऊं, मैं टेंशन इस वजह से है ना, मैं मैथ से हूँ और मैथ मेरे को आता नहीं है। अब बस। मैथ में तो कोचिंग करना पड़ेगा, मैथ में तो सबके लिए है। मैथ जो है ना 8 के बाद बहुत मतलब हार्ड होता है। और 9th में भी कोई वो नहीं, क्या आता है, साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा, ये सब आता है ज़्यादातर। उसको तो याद करना पड़ेगा, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वही तो। हम्म। अब सोचे हैं, इसमें अभी टाइम नहीं मिल रहा है। अब इस मतलब ये इसका कोर्स खत्म हो जाएगा तो कोचिंग करने के लिए मैथ का। हाँ तो मैथ का कोचिंग करना पड़ेगा। 9th में मतलब कोई इतना प्रेशर मत लो, पता है 9th वाले मतलब जो रहते हैं ना, तुम्हारा कॉपी लेंगे, ला के उसको जला के खत्म कर देंगे, ये रहता है। 9th वाले कॉपी नहीं चेक करते हैं, इतना मेरे को पता है, 100% मैं श्योर हूँ। बहुत कम ही लोग का कॉपी चेक करते उसमें हैं, वैसे बहुत कम। नंबर दे देते हैं। और नहीं तो 9th का कॉपी नहीं चेक होता है, 9th हुआ 11th हुआ, इन लोगों का कॉपी चेक नहीं होता है। बस वो लोग क्या करते हैं, पैसा लेने के लिए कहते हैं कि तुम लोग अगर नहीं करो, नहीं आओगे, ये नहीं करोगे तो मतलब तुमको फेल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ नहीं होता है 9th में, कोई फेल कर ही नहीं सकता पहली बात तो 9th में। मतलब 10 ज्यादा हार्ड होता है। 10 में मतलब असल बात में ये रहता है कि तुमको मतलब बोर्ड का देना पड़ता है एग्जाम ना, हम्म। और बोर्ड का कॉपी जाती है मतलब चेक करने के लिए। और ये तो स्कूल में ही रहती है कॉपी तुम्हारी। स्कूल में किसी का मन किया तो चेक करेगा, नहीं मन करते चेक नहीं करेगा, लेकिन वैसे चेक नहीं करते हैं, मेरे को इतना पता है। हाँ, वैसे ज्यादा लोगों का चेक तो नहीं होता, बस ऐसे नंबर दे देते हैं वो। चलो कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम लोग का जो डिबेट होता है ना, जाके उसमें बोला करो थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत बोलोगी ना समझ में आ जाएगा। ऐसे सर बोले थे ना, जैसे जिसको नहीं आता है, इतने हम्म। बच्चे होते हैं कि मतलब गूगल पे सर्च करके बोलते हैं, या फिर मतलब ऐसे वीडियो भेजते थे, तो उस पे से आप लोग मतलब बोला करिए लो, तो वो अपी लो मतलब ऐसे अपना वो करके और उस पे भेजती हैं लो ना। तो हम क्या करते हैं उसको लिख के और बोलते हैं उसमें। सर बोले थे ना कि अगर जिसको नहीं आता है हम्म। तो वो जो भेजते हैं उसमें से देख के बोला करिए, कम से कम बोलने की आदत होगी। तो वही तो बोलने बोलने की आदत मेन चाहिए ना, कि तो पढ़ने के लिए सब लोग पढ़ता है, मतलब पढ़ते हैं इंग्लिश, लेकिन बोलने का नहीं तरीका आता है ना। अभी मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो गया, ये सब पता है, लेकिन बस बोल नहीं पाता। बोलने में क्या होता है कि मतलब बहुत अलग से अलग वर्ड आते हैं, समझ रही हो, जिसके बारे में हम लोग को हम्म, पता नहीं रहता है। न्यू न्यू वर्ड आता है बोलने में। और इसे क्या, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता, बस यही ज्यादातर यूज हम लोग यही करते हैं। और और उसमें जो जैसे रहता है, कि बोलिए। और उसमें जो रहता है कि मतलब बहुत लोग अलग अलग वर्ड बोलते हैं अपने हिसाब से। मतलब एक ही मतलब सब बोलेंगे, लेकिन उसका मीनिंग मतलब अलग अलग रहता है मतलब।
एक ही वर्ड जैसे बोलेंगे कि एक। ये इंग्लिश का बुक हम पढ़ते हैं ना, तो जैसे उसको सर लोग जैसे हिंदी में बता देते हैं, वैसे हमको समझ में नहीं आता है कि मतलब पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका हिंदी में माने नहीं पता चल पाता है। आ जाएगा। मैं भी मतलब जब था, मतलब मैं अभी नहीं, मतलब मैं बहुत पहले से कोचिंग किया हूँ इंग्लिश का। और मतलब ग्राम में जब फोर्थ में था मैं ना, तब जाया करता था कोचिंग करने में। तब भी पढ़ा हूँ, नहीं नहीं, पहले। हम तो इसका अब किए, पहले तो स्कूल में ही पढ़ लेते थे लोग। नहीं, मैं 2-3 बार गया हूँ कोचिंग करने, मतलब ये बोलने वाला नहीं, बस ग्रामर का कोचिंग करने गया था। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बस हम सोचते हैं ना इंग्लिश पढ़े तो उसका हिंदी समझ में आ जाए, और बाकी सब हम देख लेंगे। तो वही तो बोल रहा हूँ, तुमको टेंथ शुरू से पढ़ना पड़ेगा ना। कि जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर रहेगा, ही विल बी अ डॉक्टर, ऐसा रहता है ना। अच्छा, ये जो हाँ। सर पीडीएफ हम लोग को भेजे हैं, हाँ, मतलब इसमें तो तो पूरा A to Z पूरा एकदम समझ लो, जो सर भेजे हम लोग को। तो जैसे वो जो हिंदी में ऐसे ही भेजे हैं उसका वो, मतलब हिंदी 170 का है, फिर 170 लिखे हैं, ऐसे है। तो इसको हाँ। मतलब अपने तरीके से कॉपी में लिख के उसका फिर इंग्लिश ऐसे लिखने में तो हो सकता है ऐसे। अगर कोई चीज तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर तुम कोई चीज याद भी कर रही हो, एक बार पढ़ती हो नहीं समझ में आता, अगर उसी को तुम कॉपी में अगर 5 बार लिखोगी ना, एकदम इजी आ जाएगा, एकदम इजी समझ में आएगा। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में नहीं आएगा, 4 बार में नहीं आएगा, 5वां बार में जरूर आएगा, एकदम इजी। कोई भी मतलब चीज याद करना, उसको 4-5 बार कॉपी में लिख दो, देखो अभी फट से याद हो जाएगा। अच्छा। हम्म, कोई इसमें वो नहीं है मतलब। टेंस से समझ लो अब एकदम इजी हो गया मतलब। पहले हम लोग थे तो हम लोग भी समझ में नहीं आता था, लेकिन अब एकदम इजी समझ में आता है टेंस। थोड़ा तुम्हारा एज भी कम है अभी ना, तो अभी ज्यादा प्रेशर नहीं लेने का। एकदम आराम से पढ़ो। वही हाँ। तो, अभी इतना सारा भेजे हैं तो सब अभी लिखना है मेरे को, मंडे को कॉपी चेक होगा। अरे हमको पता है, इतना कॉपी लिखवाता है कि दिमाग खराब हो जाता है। एक तो ऐसे मैं लिखवा रहे हैं लोग, लिखवा भी नहीं रहे हैं, ट्वेल्थ इतना में जल्दी ट्वेल्थ में बोल रहे मेरे हैं लोग। ट्वेल्थ में पूरा फाइल लिखवा उखवा के एकदम ऐसे ही फेंक दिए, जाओ बात खत्म। और हम लोग को लिखना पड़ा पूरा 10 दिन कम से कम। हालत खराब हो गई थी। और कहा देखे तो फाइल ऐसी फेंकी हुई है, रखी है उधर फेंक के, कोई इतनी नहीं है उसका। कोई वो नहीं, 9th में कोई टेंशन मत लो। अगर हाँ 10 आएगा, 10 में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। 10 में क्या रहता है, जाके कॉपी भरो, अच्छे से कॉपी भरो, राइटिंग अच्छा लिखो, 2-3 पेज एकदम अच्छा लिखो। और बाद में कुछ भी लिखते जाओ, पूरा एकदम निकल जाएगा, बस राइटिंग अच्छा रहना चाहिए। बस 9th में उन लोग का जीवन पर से ज्यादा आता होगा, जीवन पर से। हाँ, जीवन पर से। हिंदी मीडियम से या सीबीएसई बोर्ड थे? नहीं नहीं, यूपी बोर्ड है ये, है ना तब तो स्वामी देवानंद इंटरमीडिएट तब कॉलेज तो कोई कठुआ। टेंशन ही नहीं, तब तो एकदम इजी निकलेगा, समझ लो हिंदी मीडियम से एकदम इजी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नहीं। हिंदी में तो भूल जाओ, कोई फेल करेगा, इंग्लिश की बात अलग रहता है, लेकिन हिंदी में नहीं। चलो। ठीक है, कोशिश करेंगे हम। कौन आएगा नेक्स्ट? बहुत बात कर ली हम लोग। हेलो हेलो। फैयाज भाई थोड़ा एक बार आइए तो। एक बार हमें लोग थोड़ा। अभिषेक नहीं आया है ना, अभिषेक अभिषेक। हाँ बोलिए। कल पढ़े थे तुम पास्ट वाला? हाँ हाँ तो पढ़े। हम लोग आज पढ़ेंगे सब्जेक्ट मिसिंग वाला। जब किसी में सब्जेक्ट मिसिंग रहेगा ना, तो हम लोग यूज हम्म कर। पास्ट में जब कोई सब्जेक्ट मिसिंग रहेगा, उसके लिए यूज हम्म, करते हैं वाज और वार, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। इसे मतलब मैं बोलूँ मैंने पढ़ाया था, इसमें तो सब्जेक्ट है ना, मैं ही पढ़ाया था हम्म, और मुझे पढ़ाया गया था। मुझे पढ़ाया गया था। आई वॉज टीच। नहीं, टॉट होगा। आई वॉज टॉट। हाँ। उसने गाली दिया था, ये नॉर्मल है। यू यू अब्यूज्ड। उसने उसने का ही होता है, ही अब्यूज्ड। ही अब्यूज्ड।
उन्हें गाली दिया गया था। उन्हें हम्म he नहीं, उन्हें he का दे ab- होगा ना, उन लोगों को मान के चलो। they they abused दे और अब्यूज, उन्हें गाली दिया गया। हाँ वो हो जाए। गाली देने वाला कौन है पता ही नहीं है ना। they were abused हम्म उसे धोखा दिया गया था। he he was धोखा देने का चीट। cheat cheat हाँ, चीटेड होगा, चीटेड। उसे धोखा उसे धोखा दिया गया था। धोखा देने वाला पता ही नहीं है कौन है, इसीलिए होगा चीटेड। ये बस चीटेड। मुझे सलाह दिया गया था। I I was सलाह देने का एडवाइज्ड, एडवाइज होता है, थर्ड फॉर्म क्या होगा? एडवाइज्ड। advice तो इसमें तो हम लोग पता चल रहा है कि सब्जेक्ट मिसिंग है, तो हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और एक आएगा मतलब ना, जब कोई काम बीते समय में दूसरे काम से पहले हो गया था, पहले पूरा हो गया था, जैसे मतलब मैं पहले ही खाना खा चुका था, तो इसके लिए यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस बिफोर। समझ रहे हो? जब कोई काम बीते समय में दूसरे काम से पहले हो गया था, मतलब मैंने पहले ही खाना खा लिया था। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर। चलो बताओ, मैं पहले ही खाना खा लिया था। I had it before नहीं, ईट नहीं, ईटन eaten होगा me थर्ड फॉर्म। हाँ, ईटन, आई हैड ईटन बिफोर। वह पहले ही सो गया था। वो he had स्लीप और स्लेप्ट। sleeping स्लीपिंग नहीं, स्लेप्ट slept होगा थर्ड। हाँ, slept before मैं पहले ही चला गया था। I I had I had गॉन, go be, गो वेंट gone गॉन। before हाँ, आई एम गॉन बिफोर। मैंने पहले ही पैसा दे दिया था। I मैंने पहले दे दिया था। I had एक मिनट रुकिए बस। भैया ये सम टाइम कब लगाया जाएगा? सम टाइम मतलब जैसे लगता है कुछ, जैसे आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के लिए लगता है। जैसे मतलब एक सवाल पे बता दीजिए। एक मिनट रुको, बता रहा हूँ। मैं सम टाइम पढ़ा हूँ लेकिन भूल गया थोड़ा। समटाइम्स कभी कभी। हाँ वही मतलब, कभी कभी। मतलब जैसे जैसे कि मैं कभी कभी वह झगड़ा करता आलू था। कभी कभी चिल्ला कर बेचते हैं। सम टाइम, कभी कभी, हाँ। अच्छा, कभी कभी का सम टाइम होगा। और जो जैसे हम्म वह अभी सोया है तो उसका बिफोर होगा। सोया है। मतलब जैसे कि वह अभी सोया है या फिर पहले, मतलब कब बिफोर कब लगेगा? और पहले ही सो गया था तब लगेगा। अच्छा, वो पहले ही सो गया था वो। हाँ, बिफोर बाद में लगता है ना, तब से लास्ट में। और ही जैसे हैड से, अभी मतलब जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वह अभी सोया है। वो अभी सोया है। ही हैव लगेगा। ही हैव एवलिंग। नहीं, स्लेप्ट, ही हैव स्लेप्ट।
जिसका प्रेजेंट पता नहीं हमें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, he had just हाँ, slept. He had just slept. he had just sleep. He had just slept. सर जी आ गए, आज तो कोई है ही नहीं। he had just slept. सर कल के लिए सॉरी, कल भी हम सो गए थे ना, आप बोले होंगे। वेल, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आज का क्लास खत्म होता है, इसी तरीके से कुछ प्रैक्टिस करते रहिए। पढ़ाने वाला, बताने वाला सबसे पहले सीखता है, तो यस सर। जो प्रैक्टिस करा रहे हैं उसका सबसे पहले क्लियर होगा, ठीक है। और कल से मिस्टर मिनहाज भाई, थोड़ा इन लोग को अब जी इंग्लिश सर। बोलने की, अब सेंटेंस छोड़िए, अब थोड़ा कुछ जी सर। गलत ही सही बोलने की प्रैक्टिस कराइए। सर एक टॉपिक देंगे उस पर बात करने के लिए। कल आपने क्या क्या किया, आज जो किए कल बताना है। ठीक है, ठीक है। जी सर।